रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में चनाब ब्रिज को इनॉग्रेट किया एंड कुछ ही दिन पहले पंबन ब्रिज को इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे इनॉग्रेट किया गया. Guess what is common in all these projects? They all reflect India's future infrastructure and all of them have been made by one engineering fraternity and that is IES. तो आज हम बात करेंगे why choosing IES could turbocharge your civil engineering career. तो अगर आप परेशान हो अपनी सिविल इंजीनियरिंग करियर को लेके एंड आप फ्रस्ट्रेटेड हो विथ पुअर जॉब सिनेरियो, लो वेजेस एंड पुअर वर्क एनवायरनमेंट, stick till the end of the video. Your perception about civil engineering is going to change. In this video, we are going to discover why choosing IES as your career can future-proof your career and give a big boost to your career. I know this because I'm an IES officer who is working in CPWD as executive engineer and I am in this profession since past 8 years. And like all of you, I too was confused at the start of my career about what to choose for my career that would give me a good boost in my civil engineering. So what is IES? IES stands for Indian Engineering Services and ये इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी है जो इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है. तो अगली बार जब आप किसी भी बड़े मेगा स्ट्रक्चर के सामने सेल्फी ले रहे होंगे, रिमेंबर देयर इज एन IES behind it. As an IES, your works directly shape the nation's future. From bridges to high-speed rail, from smart cities to sustainable development, all of these projects are executed by reputed IES officers. IES बनने के लिए लोग रिक्रूट होते हैं through UPSC Engineering Services Examination and it is one of the most grueling examinations of the world. As a policy enabler, as a project leader, and as a strategic engineer. IES officers serve in various departments like Indian Railways, CPWD, CES Roads, MES, IDSC, and many more. And through these departments, you get to execute India's best of the best projects. So if you are a civil engineer who is excited about India's infrastructure, this is the time to join IES. But wait, that's not the only reason why I told you कि IES ज्वाइन करके आप इंडिया के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. दोस्तों आज इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बहुत ही क्रिटिकल एंड बुरे चैलेंजेस से गुजर रहा है. चोक्ड रोड्स, चोक्ड ड्रेन्स, लैंडफिल्स एंड लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटीज. This is all what is there in the Indian cities. And if you go to the Indian villages, there are dumps, there are potholes on the roads and many more. So basically, Indian infrastructure doesn't look like an infrastructure of fourth largest economy of the world. And जहाँ इन challenges से परेशान होके IT and MBA graduates अपने country को छोड़ के दूसरे countries में जा रहे हैं, वही IES officers इन challenges को खड़े होके tackle कर रहे हैं, one step at a time. IES officers are the frontliners of re-engineering India into a more sustainable and more livable country. ये IES officers silently cutting edge solutions provide कर रहे हैं इंडिया के major challenges को and हमें दे रहे हैं smart roads, green buildings, Delhi metro and high speed rails. ये सारे प्रोजेक्ट्स ये सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है, ये लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के हर गली, हर बड़े छोटे सिटी में एग्जीक्यूट किया जा रहा है. एंड आई थिंक इंडिया एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है एंड दिस ट्रांजिशन इज देयर फॉर एवरी कंट्री. यूएस ने ये ट्रांजिशन फेस किया लेट 1800s एंड अर्ली 1900s. यूरोप ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ये ट्रांजिशन देखा एंड चाइना सॉ दिस इन लेट 1900s एंड अर्ली 2000s. अगर हम बस 20 साल पहले की हिस्ट्री देखें तो हमें मिलेगा कि चाइना में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, वो सारे के सारे प्रॉब्लम जो 20 साल पहले वहाँ एग्जिस्ट करते थे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आज करंट इंडिया में रिजेंबल करते हैं. सो इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर बूम इन नेक्स्ट 20 years. एंड गेस हु इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस? Civil engineers. And अगर आप IES में हो तो you are at the top of the pyramid of civil engineers and you will be the one who will benefit the most out of it. पर अगर आप इंडिया में एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको मेरी बातें सुन के हंसी आ रही होगी. Yes, that's because most of us after college regret taking civil engineering अगर हमने सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट जॉब लिया है. That's because conventional private jobs in civil engineering really sucks in India. 12 से 14 घंटे की जॉब, 12 से 14 हजार की सैलरी एंड ढेर सारे बॉस की गालियां, खूब सारा प्रेशर, रात को खड़े होके कास्टिंग कराना एंड दिन के धूप में खड़े होके बार बेंडिंग कराना. ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में लोग फेस कर रहे हैं एंड दैट एक्चुअली अंडरमाइंस द टाइप ऑफ पोटेंशियल ए सिविल इंजीनियर एक्चुअली हैज. मुझे याद है जब मैं प्राइवेट सेक्टर में था
I used to handle around 10 villas जिसको मैं supervise करता था, and along with that there was a central park. And I could never even imagine कि 3 से 4 साल के अंदर वो पूरा का पूरा विला प्रोजेक्ट जिसमें कि अराउंड 200 विलास थे, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैं टेकअप कर पाऊंगा. I mean, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में 3 से 4 साल में इतना बड़ा तो नहीं बन सकता है कि उसको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिले. But then I cleared IES. And the moment I cleared IES to my first posting, I executed a project twice the size of that private project. Now think about it. The point is, IES gives you such a lift to your career that वहाँ से जब आप खुद को launch करते हो, you go only up and you get a decent place and get a decent taste of civil engineering. बात ये आती है कि IES एक बहुत ही tough examination है and सबके बस की बात तो है नहीं. तो क्या हम प्रिपरेशन करना ही छोड़ दें? माई पॉइंट इज, सपोज करो एक बहुत बड़ा सा पेड़ है एंड उसमें जो टॉप हंग फ्रूट है आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो. मानते हैं कि आप उसको तोड़ने की कोशिश में शायद अनसक्सेसफुल रहो, लेकिन उस फेज में आप कहीं ना कहीं कोई लो हैंगिंग फ्रूट को जरूर प्लग करोगे एंड इवन दैट will be a big boost to your career. The idea is कि if you prepare for IES, the other examinations like SSC JEE, state AEs and other examinations which are there in civil engineering will be quite a piece of cake for you. And that's why I insist कि you should all prepare for IES examination. और इतना ही नहीं, सपोज करो कि कुछ नहीं भी निकलता है एंड अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग एंथुसियास्ट हो, in the process of preparation, you evolve your strategies, you evolve your knowledge to such an extent that you become a potential specialist in the field जिसमें आप काम कर रहे हो. Suppose करो कि आप एक engineer हो in a sewage treatment plant facility. And if you prepare for IES, you deep dive into that subject, you go through the course, you go through international course, and in the process, you become a specialist technician. That's why, अगर आप एक civil engineer हो, preparing for IES is worth the effort. But wait, हम में से कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, हमें टूटा फूटा फैसिलिटी मिलेगा, देयर विल बी पॉलिटिकल प्रेशर एटसेट्रा एटसेट्रा. If you are the one who thinks like that, wait till the next section of the video and your doubt will be cleared. दोस्तों, कई बार हम न्यूज में देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल फेस आके एक इंजीनियर को डांटता है, डांट लगाता है, स्कोल्डिंग करता है एंड तरह तरह की चीजें बोलता है. एंड देन इट मेक्स अस रियलाइज कि यार हमने इतनी पढ़ाई की एंड कोई अनप्रोफेशनल आदमी आके हमारे ऊपर दबाव डालेगा, इट्स नॉट रियली वर्थ इट. But IES is a place जहाँ पे you will be shielded, completely shielded from such kind of influences. IES के through जो departments आपको मिलेंगे, वहाँ पे most of the departments में, you will from top to bottom there will be engineers only. And आपके problems को, आपके procedures को समझा जाता है. And इतना ही नहीं, आपको mentorship भी मिलता है by some of the top minds of our country. And that's the way you upskill your career as a civil engineer. IES के थ्रू मिले हुए डिपार्टमेंट्स में आपको सही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाया जाता है, सही कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिखाया जाता है, एंड इन द प्रोसेस यू बिकम द फेस ऑफ फ्यूचर ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. विद चेंजिंग टाइम्स, सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट स्टील एंड कॉन्क्रीट. इट्स AI ड्रिवन डिजाइन्स, ड्रोन बेस्ड इंस्पेक्शंस, IoT enabled ब्रिजेस एंड बीम बेस्ड प्लानिंग. In CPWD, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, we are testing new materials on a regular basis. We are doing drone-based inspections on live projects. Yes, drone-based inspections on live projects. And we are doing preventive maintenance using artificial intelligence. And all of these things are being done at massive scale across all the departments जहाँ पे आप जाओगे through IES. पर ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको चाहिए अच्छा वाला वर्क कल्चर एंड अच्छी सी सैलरी एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर. एंड इन सर्च ऑफ दीज थिंग्स वो अपने डोमेन को ही स्विच कर लेते हैं. लाइक मेनी ऑफ अस गो टू IT और फिनटेक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर सेक्टर. बट वेट, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो जिनको सिविल इंजीनियरिंग में एक्चुअल पैशन है एंड बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस यू आर स्विचिंग योर डोमेन, यू डोंट हैव टू डू दैट. बिकॉज अगर आप IES में आते हो, ना सिर्फ आपको एक अच्छा वर्क कल्चर मिलेगा, ना सिर्फ आपको अच्छे वर्क कंडीशंस मिलेंगे, बल्कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में ही एक्सेल करने के अच्छे खासे मौके मिलते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट, आज के डेट में IT एंड टेक सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा खतरा है. वहीं कोर सेक्टर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उतना ज्यादा खतरा नहीं है, बिकॉज कोर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हाई स्किल लो वेजेस में अवेलेबल है. अगर आप अपने फ्यूचर करियर को शील्ड करना चाहते हो फ्रॉम द थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एटलीस्ट फॉर द टेम्पररी मेजर्स ऑल्सो, देन IES कैन बी समथिंग जहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो. इनफैक्ट एज अ सिविल इंजीनियर अगर आप IES से अपना करियर स्टार्ट करते हो, देन योर पेज आर एट पार विद दोज ऑफ IT एंड टेक गाइज.
you'll be getting around 80,000 to 1 lakh rupees at the start of your career. And 4 to 5 years hence, जब आपके पास अच्छा खासा experience हो जाएगा, but growth in your salaries won't be that good. Yeah, growth in salaries is not actually good in government sector. Then आप switch कर सकते हो either to entrepreneurship or to higher studies. IIM अहमदाबाद हो, IIM बैंगलोर हो, ISB हैदराबाद हो, आप किसी के भी कोहॉर्ट के लिस्ट को ले लो, you'll find a lot of IAS officers from different departments जिन्होंने 4 से 5 साल काम किया है and then moved for MBA. And if you are a civil engineer and moving towards MBA, then a career in IAS, which is actually very, very enriching, will give you a much bigger boost as compared to that if you are working in private sector. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपोजर नहीं मिलता. ऑन द कॉन्ट्ररी ये सारी की सारी चीजें आपको आईएएस में मिलते हैं. और ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए हु आर रेडी टू इनोवेट एंड अडैप्ट. Becoming an IAS officer doesn't just give you a security in terms of job. It also gives you power to shape the India's future civil engineering prospects. पास्ट में भी आईएएस ऑफिसर्स ने इंडिया को पावरफुल वेज में ट्रांसफॉर्म किया है. फिर वो चाहे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे दिल्ली मेट्रो के स्टैंडर्ड्स बनाने में हो, चाहे बॉर्डर एरिया की कनेक्टिविटी में हो, या ग्रीन बिल्डिंग्स को इन्हांस करने में हो. आईएएस ऑफिसर्स साइलेंटली मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हैं. एंड अगर आप भी ऐसे कोई हो जिनको मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करना है, उनके लाइफ को अफेक्ट करना है, देन आईएएस इज समथिंग व्हिच यू कैन कंसिडर. आईएएस सिर्फ एक जॉब नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ and transforming the nation. So if you are passionate about engineering, if you are passionate about transformation and you don't worry much about money, money will come to you. It's the moment to rise. It's the moment to explore yourself and it's the moment to explore IAS. That's it for today's video guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आई गेट द मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस.